These are by way of exchange of MOUs and joint statements and a virtual inauguration. First, we witnessed the exchange of the joint statement on roadmap for a comprehensive strategic partnership and the Reserve Bank and an agreement between the Reserve Bank of India and the Monetary Authority of Singapore on digital assets innovation. We will have the exchanges on the Singapore side, Dr. Vivian Balakrishna, Minister for Foreign Affairs. On the Indian side, Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. The two documents, please. Thank you, Ministers. We next have the exchange of Memorandum of Understanding between India and Singapore concerning cooperation on a green and digital shipping corridor. This will be exchanged on the Singapore side by Mr. Jeffrey Thao, Acting Minister for Transport and Senior Minister of State for Finance, Singapore, and Shri Sarbanand Sonowal, Honorable Minister of Port, Shipping and Waterways, India. Thank you, Ministers. We next have the exchange of Memorandum of Understanding between Airports Authority of India and the Civil Aviation Authority of Singapore for training, research and development in the field of civil aviation. This will be exchanged on the Singapore side by the High Commissioner of Singapore to India, Mr. Simon Wong, and on the Indian side by Shri Samir Kumar Sinha, Secretary Civil Aviation. Thank you, gentlemen. We next have the exchange of Memorandum of Understanding between the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, India, and the Ministry of Trade Industry, Republic of Singapore, for establishing a National Center on Excellence for Skilling in Advanced Manufacturing at the National Skill Training Institute, Chennai. This will be exchanged on the Singapore side by the High Commissioner of Singapore, Mr. Simon Wong, and on the Indian side by Shri Vikram Misri, Foreign Secretary. Thank you, gentlemen. We next have the exchange of Memorandum of Understanding between Indian National Space Promotion and Authorization Center and the Economic Development Board, Office of Space Technology and Industry, Singapore, on promoting collaboration in space sector. This will be exchanged on the Singapore side by Mr. Jonathan Hung, Executive Director, OSTIN, and on the Indian side by Shri P. Kumran, Secretary, East. Thank you, gentlemen. Taking forward Prime Minister Modi's vision for port-led development, we shall now witness the joint virtual inauguration of Jawaharlal Nehru Port PSA Mumbai Terminal BMCT Phase 2, which will be followed by introduction of a video on JN Port. Prime Ministers, may I request you to press the button and unveil the digital plaque. India's maritime journey is a story of transformation, anchored in the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of port-led development. Over the last 11 years, this vision has reshaped our coastline, boosted cargo movement, and placed India firmly on the global maritime map. Ports for prosperity और ports for progress का हमारा विजन धरातल पर लगातार बदलाव ला रहा है। दुनिया के बड़े बड़े मैरीटाइम ऑपरेटर्स भारत आए, भारत से ही ऑपरेट करें, इसके लिए भी भारत में तेजी से काम हो रहा है। As part of this ongoing momentum, today we mark a new milestone, the inauguration of Phase 2 of Bharat Mumbai Container Terminals at JN Port, India's largest container port.
India and Singapore share a trusted maritime partnership built on shared ambition and global vision. Together, we advance green shipping, smart port operations, and regional prosperity. Embracing these relationships, JNPA, India's best performing port, now also stands as the nation's largest container port, handling over 10 million containers annually and connecting India to the world. Strategically located in Navi Mumbai, JNPA integrates road, rail and the western dedicated freight corridor, ensuring swift cargo movement to key industrial hubs. PSA Mumbai, with its advanced yard systems, dedicated freight corridor, renewable energy operations with state-of-the-art technology and smart operations, sets the benchmark in smart, sustainable cargo handling. This partnership reflects a trusted maritime bond between India and Singapore, built on shared ambition and global vision. JNPA and PSA Mumbai, empowering Viksit Bharat, one container at a time. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony, and I request the spokesperson to take the proceedings forward. Namaskar, good afternoon. Your Excellency, Mr. Lawrence Wong, Prime Minister of the Republic of Singapore, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, प्रधानमंत्री वांग, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री वांग की पहली भारत यात्रा पर मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह यात्रा और भी विशेष है क्योंकि इस वर्ष हम अपने संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। फ्रेंड्स, पिछले साल मेरी सिंगापुर यात्रा के दौरान हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। इस एक वर्ष में हमारे संवाद और सहयोग में गति और गहराई आई है। आज साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सिंगापुर से भारत में बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। हमारे रक्षा संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। पीपल टू पीपल संबंध गहरे और जीवंत है। आज हमने अपनी पार्टनरशिप के भविष्य के लिए एक डिटेल्ड रोड मैप तैयार किया है। हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, स्किलिंग, सिविल न्यूक्लियर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र भी हमारे सहयोग के केंद्र बिंदु बनेंगे। हमने निर्णय लिया है कि आपसी व्यापार को गति देने के लिए द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और आसियान के हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समयबद्ध तरीके से रिव्यू किया जाएगा। भारत और सिंगापुर के रिश्तों में हमारे राज्य भी अहम हिस्सेदार होंगे। जनवरी में जब राष्ट्रपति थर्मन भारत यात्रा पर आए थे तो वे ओडिशा भी गए थे। पिछले एक साल में ओडिशा, तेलंगाना, आसाम
और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सिंगापुर जा चुके हैं। गुजरात का गिफ्ट सिटी हमारे स्टॉक मार्केट को जोड़ने का एक और नया सेतु बना है। फ्रेंड, पिछले साल हुए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप समझौते ने रिसर्च और डेवलपमेंट को भी नई दिशा दी है। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर की कंपनियों उनका बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। चेन्नई में सिंगापुर का एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग स्थापित करने में सहयोग देगा। यह सेंटर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में स्किल्ड मैन पावर तैयार करेगा। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी साझेदारी के मजबूत स्तंभ है। हमने तय किया है कि एआई, क्वांटम और अन्य डिजिटल टेक्नोलॉजीज में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। आज स्पेस सेक्टर में हुए समझौते से अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र सहयोग में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हमने निर्णय लिया है कि हमारे युवाओं को उनके टैलेंट को जोड़ने के लिए इस साल के अंत में इंडिया सिंगापुर हैकाथॉन का अगला राउंड किया जाएगा। यूपीआई और पे नाउ हमारे डिजिटल कनेक्टिविटी के सफल उदाहरण है और ये प्रसन्नता का विषय है कि इसमें 13 नए भारतीय बैंक जुड़े हैं। आज ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर्स के लिए हुए समझौते से मैरीटाइम सेक्टर में ग्रीन फ्यूल सप्लाई चेन और डिजिटल पोर्ट क्लियरेंस को बल मिलेगा। भारत अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी से काम कर रहा है। इसमें सिंगापुर का अनुभव अत्यंत उपयोगी है। आज हमने सिंगापुर की कंपनी एसपीए इंटरनेशनल द्वारा विकसित भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन किया। यह हमारे कंटेनर हैंडलिंग की क्षमता को और बढ़ाएगा। फ्रेंड्स, सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम आसियान के साथ सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के जॉइंट विजन को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। आतंकवाद को लेकर हमारी समान चिंताएं हैं। हम मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से लड़ना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के लोगों के प्रति संवेदना और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री वांग और सिंगापुर सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आवर रिलेशंस go far beyond diplomacy. This is a partnership with purpose, rooted in shared values, guided by mutual interest and driven by a common vision for peace, progress and prosperity. हमारी इस भागीदारी में आपकी निजी प्रतिबद्धता के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Lawrence Wong, Prime Minister of the Republic of Singapore, to give his remarks to the media. Your Excellency Prime Minister Narendra Modi, Excellencies, ladies and gentlemen, thank you, Prime Minister Modi, for the warm and gracious hospitality extended to me and my delegation. 10 years ago, I joined then President Tony Tan on his state visit to commemorate the 50th anniversary of diplomatic ties between Singapore and India. Today, 10 years later, I'm glad to be back on my first official visit as Prime Minister and to celebrate 60 years of close and enduring friendship between our two countries. Over this past decade, India has made remarkable advances
under Prime Minister Modi's leadership. India is now the fourth largest economy in the world, with a dynamism and influence felt far beyond its borders. Our bilateral relationship has grown in tandem. Singapore is the largest foreign investor in India, accounting for around a quarter of India's foreign direct investment inflows. And our cooperation now spans a wide and diverse range of fields. Last year, PM Modi and I agreed to elevate relations to a comprehensive strategic partnership, or a CSP. This morning, we had fruitful discussions on how we can take this CSP forward. The Prime Minister has highlighted quite a number of areas, and I will reiterate a few of them. First, Singapore will continue to support India's skills development journey. We are honored to accept India's invitation to be a global partner for the National Center of Excellence in Chennai, which will focus on advanced manufacturing. We will also collaborate with India to set up state-level skills centers to meet industry needs in sectors like aviation, maintenance, repair and overhaul, and semiconductors. Second, we will expand cooperation in manufacturing and industrial development. Singapore companies are keen to develop sustainable industrial parks in India to support India's manufacturing ambitions. At the same time, we will deepen collaboration in semiconductors, not just in skills training, but also in R&D, supply chains, and logistics. And these efforts will generate new growth opportunities for both our countries. Third, we will strengthen connectivity across the air, sea, and digital domains. This morning, we exchanged an MOU on cooperation in training, research, and development in civil aviation. This will support the growth of our aviation sectors, facilitate trade and tourism, and create more commercial opportunities. On the maritime side, we just launched Phase 2 of PSA's Bharat Mumbai Container Terminal in Navi Mumbai, which will become India's largest standalone container terminal. And beyond physical links, we are also enhancing digital connectivity between our financial systems. Our central banks have exchanged an MOU on digital asset innovation, and we are discussing ways to further enhance cross-border data flows and capital market linkages, including through regulatory sandboxes that would allow us to test-bed new innovations. Fourth, we will expand cooperation in frontier areas like space. To date, more than 20 Singapore-made satellites have been launched by India. Through the MOU on promoting collaboration in the space sector, we will broaden this partnership and push the boundaries of what we can achieve together. Finally, Prime Minister Modi and I reaffirmed that people-to-people ties remain the bedrock of our relationship. We agreed to enhance exchanges, including through closer civil service cooperation. All of these initiatives reflect the breadth and depth of our CSP. And to guide our efforts, PM Modi and I have also agreed on a roadmap, an ambitious and detailed roadmap to chart the next phase of our relationship. In a world marked by great uncertainty and turbulence, the partnership between India and Singapore becomes even more important, because this is a partnership rooted in shared values, mutual respect, and a deep reservoir of trust. We can draw strength from our shared history and the friendship and trust between our peoples. And together we can strengthen resilience, seize new opportunities, and contribute to stability and growth in our region and beyond. So I look forward to working hand in hand with Prime Minister Modi to bring the Singapore-India partnership to even greater heights in the years ahead. Thank you very much. Thank you, sir. That concludes the press statements. Thank you for your presence, ladies and gentlemen.
तो सुना आपने भारत और सिंगापुर के आपसी संबंधों की अगर बात की जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरीके से नए अवसर जो हैं वो मिलते नजर आएंगे और खासतौर से 5 MOU जो हैं उनका भी जिक्र उन्होंने किया। साथ ही सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रखी और खासतौर से उन्होंने बताया कि अब हम कहीं ना कहीं 60 वर्ष के जो राजनयिक संबंध रहे हैं सिंगापुर के साथ वो कितने महत्वपूर्ण रहे हैं, कैसे प्रगाढ़ हुए हैं और क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं प्रधानमंत्री के संबोधन की, वो आपको हम यहाँ बता देते हैं। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से सिंगापुर जो है वो कहीं ना कहीं आज हम उसके साथ राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 60 वर्ष पुराने ये संबंध हैं और फिर भी इसमें एक नया अध्याय इसमें जुड़ रहा है। सिंगापुर और भारत के संबंध में 1 वर्ष में गति आई है और इसके साथ साथ गहराई भी दर्ज की गई है। जिस तरीके से दोनों देश मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे रक्षा संबंध भी मजबूत हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने जिक्र किया उन समझौतों का जो दोनों देशों के बीच हुए हैं। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, सिविल न्यूक्लियर हमारे सहयोग का हिस्सा हैं, इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारे समझौते के साथ डिजिटल पोर्ट क्लियरेंस विकसित किया जाएगा, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस तरीके से ग्रीन शिपिंग की जब हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने जानकारी दी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने तय किया है कि AI, क्वांटम और डिजिटल तकनीक में सहयोग करेंगे। दोनों देश जो हैं यानी भारत और सिंगापुर, इनमें आपसी सहयोग और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा भी करेंगे। तो ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान अभी कही हैं। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों की समान चिंताएं हैं। भारत और सिंगापुर देखिए किस तरीके से कई ऐसे विषय जिस पर एक मत नजर आते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन के लिए प्रधानमंत्री ने सिंगापुर का आभार भी व्यक्त किया और उसके साथ साथ एक नई साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है इस मुलाकात को। खासतौर से द्विपक्षीय बैठक जो हुई है उसके बाद जो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी। और खासतौर से आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजन कुमार हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। डॉक्टर राजन, बहुत बहुत स्वागत आपका DD न्यूज़ पर। आपसे भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से भारत और सिंगापुर के रिश्तों की अगर बात की जाए, एक नया अध्याय उसमें हम मान सकते हैं किस तरीके से जुड़ता नजर आ रहा है अभी जिस तरह की जानकारी दी गई है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जो लॉरेंस वोंग है सिंगापुर के प्रधानमंत्री, उनकी पहली यात्रा है भारत में जी। और सिंगापुर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो बता दूं कि जिसकी बात प्रधानमंत्री ने भी बताई कि जो हमारा इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में 2-3 कंट्री या रीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की यात्रा अभी जापान में हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री चीन में गए थे। ये दोनों एक्ट ईस्ट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तीसरा जो है आसियान रीजन को बोला जाता है। आप देखेंगे कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, उन्होंने एक किताब भी लिखी है, तो उस जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी का जो उसका जो की पिलर है वो है कि सेंट्रलिटी ऑफ आसियान, मतलब आसियान उसके सेंटर में है। तो उस दृष्टिकोण से आप इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखेंगे तो उसमें सिंगापुर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि उसका हमारे साथ ट्रेड आप जानते हैं कि लगभग 35 बिलियन है और प्रधानमंत्री ने भी बताया कि कितना बड़ा ट्रेड पार्टनरशिप है। बिल्कुल। उसको यह भी बता दूं कि जो वहाँ से इन्वेस्टमेंट आते हैं सिंगापुर से भारत में, तो सिंगापुर सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर, बिल्कुल सबसे ज्यादा जी, 15 से 17 बिलियन के आसपास पिछले साल का फिगर बताया जा रहा है जी। तो उस दृष्टिकोण से सिंगापुर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आप जानते हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा, मतलब 2 तरह के डायस्पोरा है वहाँ पे। एक जो बहुत पहले से जो पॉपुलेशन जो सिंगापुर में भारतीय ओरिजिन के हैं वो वहाँ पे रह रहे हैं। उनकी संख्या लगभग 9 से 10% बताई जाती है। सिंगापुर का पॉपुलेशन लगभग 60 लाख के आसपास होगा और जो भारतीय हैं वहाँ पे वो लगभग 9 से 10% के आसपास बताया जाता है। और इसके अलावा जो काम कर रहे हैं हमारे लोग वहाँ पे, जो भारत के हैं लेकिन वीजा पे वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उसकी संख्या लगभग 4 लाख के आसपास बताई जाती है। जी, इन सारे दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो सिंगापुर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जिसकी बात लॉरेंस वोंग जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने की थी कि जो टर्बुलेंट वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, वो रेफर कर रहे थे साइलेंटली, अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे थे। और वो सिंगापुर का जो रेजिम है वह भी जो अमेरिका की पॉलिसी है उससे काफ़ी नाखुश है। मैं बता दूं उनको लग रहा है कि जो जिस ढंग की टैरिफ और इत्यादि लगाने की कोशिश हो रही है उससे सिंगापुर की स्थिति खराब हो सकती है। क्योंकि जानते हैं सिंगापुर के साथ क्या एडवांटेज है? सबसे बड़ा एडवांटेज सिंगापुर के साथ यह है
कि वह जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उसके बीच में है बिल्कुल, और ट्रेडिंग एंट्री पोर्ट के रूप में है। जी। एक तरफ चीन है जो कि काफी फास्ट डेवलप कर रहा है, दूसरी तरफ आप जानते हैं आसियान के देश हैं जो कि 90s में काफी डेवलप कर रहे थे और अभी भी डेवलप कर रहे हैं, और तीसरा आप जानते हैं भारत है। तो इन तीनों के बीच में चूंकि स्थित है, तो वहां पे अगर ट्रेड डिसरप्ट होता है या फिर इंडो पैसिफिक में कोई ट्रेड के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो अगर बढ़ते हैं अमेरिका और चीन के बीच में, या क्वाड और चीन के बीच में, या फिर फिलीपींस या चीन के बीच में जो इत्यादि बढ़ता है, तो जो भी डिस्ट्रप्शन हो रहा है, या अगर टैरिफ होता है तो टैरिफ से क्या होगा? टैरिफ से यह होगा कि जो ट्रेड है अमेरिका के साथ या चीन का ट्रेड भारत के साथ, अमेरिका के साथ, तो वह कम हो जाएगा। जी। तो उससे वो जो चूंकि एंट्री पोर्ट के रूप में काम करता है, जो कि शिप्स जाते हैं वहां पे रुकते हैं, फिर दूसरी जगह भी जाते हैं इत्यादि, तो सिंगापुर उससे लाभान्वित हुआ है, काफी उसके गेन्स बिल्कुल, हुए हैं। उसका भी जिक्र राजन जी हमने देखा, जिस तरीके से जो समझौता हुआ है उसमें भी ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर का जो जिक्र किया गया है वो भी इस वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और तमाम और दूसरे भी जो समझौते हुए हैं। जी बिल्कुल, उसमें दोनों प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और जो लॉरेंस वोंग है जो जी। सिंगापुर के, दोनों ने इसके शिपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग पे खास ध्यान दिया, बात बताई है कि इस पे जोर देने के बाद एक इनॉग्रेशन भी टर्मिनल का हुआ है। आप जानते जी। हैं कि जो कंटेनर टर्मिनल है उसका इनॉग्रेशन भी हुआ है। इसके अलावा जो शिपिंग, क्योंकि शिपिंग में हमें लर्न करने की जरूरत है सिंगापुर से। सिंगापुर एक ग्लोबल एक एंट्री पोर्ट के रूप में है जहाँ पे शिप्स जाते हैं, रुकते हैं, फिर दूसरी जगह वहां से यात्रा करते हैं, और जी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप्ड है। तो वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं भारत में, और उस पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की संभावना है। एक और महत्वपूर्ण बात जिसकी बात दोनों प्रधानमंत्री ने किया, जी। उसमें बात है एक सेमीकंडक्टर का, जिसमें कि आप जानते हैं कि भारत और सिंगापुर दोनों इस बात को लेकर परेशान है कि अमेरिका कभी भी थ्रेटन कर सकता है किसी भी देश को। अभी तो टैरिफ की बात कर रहा है, लेकिन यह मान के चले कि अगर स्थिति खराब होती है तो अमेरिका टैरिफ से आगे जाके सेमीकंडक्टर की भी धमकी दे सकता है। जी। वह मैं बता दूं कि चीन को दे चुका है। यह अलग बात है कि चीन ने फिर रेयर अर्थ मटेरियल को वहां से भेजने से मना कर दिया, तो अमेरिका झुक गया, और फिर जी। उनको एक तरह से एग्रीमेंट होने की संभावना है दोनों देशों के बीच में। लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि अगर झगड़े की स्थिति होती है या बात आगे बढ़ती है, तो अमेरिका कल के समय पे बोलता है कि हम सेमीकंडक्टर नहीं देंगे, और सेमीकंडक्टर नहीं देगा तो जो भारत, सिंगापुर, जर्मनी इत्यादि जो देश हैं उनको अपने से अभी डेवलप करने में 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है। तो वैसे में जो कॉपरेशन है, चाहे वो जर्मनी के साथ हो या सिंगापुर के साथ या जापान के साथ उन्हें बात की, तो उसमें हमेशा इस बात पे जोर दिया जी। कि ज्वाइंट टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग और सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट करने की बात है, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो अभी सेमीकंडक्टर के बिना कुछ भी नहीं चल सकता जी। है। हमारी आपसे बातचीत भी नहीं हो सकती, टेलीफोन नहीं चल सकता, मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल। नहीं चल सकती। तो वैसे में उस पे उन्होंने जोर दिया है कि कैसे उस पे कॉपरेशन दोनों करेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने स्पेस कॉपरेशन की बात की है जी। कि स्पेस के हमने कुछ दिन पहले इसरो ने उनका एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था, तो इसकी बात हमारे प्रधानमंत्री ने की है। फिर डायस्पोरा, कल्चरल कनेक्शन इत्यादि, जी। जो न्यूक्लियर सिविल कॉपरेशन के उसकी बात हमारे प्रधानमंत्री ने की। तो ये सारे एरिया काफी कॉम्प्रिहेंसिव जी। ट्रेड, और इसके साथ साथ हमने देखा सिविल एविएशन का भी जिक्र हुआ, जो समझौता हुआ है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ग्रीन ट्रांसपोर्ट को हम यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जो दोनों देश हैं वो अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए एक इशू जो है सिंगापुर और भारत के साथ कि लगभग 35 बिलियन का ट्रेड है, उसमें हम लगभग 13 के आसपास कुछ हमारा शायद एक्सपोर्ट जी। होता है। अभी उनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड में आप जानते हैं कि एक इशू बहुत बड़ा मुद्दा है कि ट्रेड डेफिसिट को कैसे कम किया जाए। अमेरिका जी। लीडर है, इसी कारण से वो टैरिफ लगा रहा है दूसरे देशों के ऊपर। तो यह दूसरे देश भी कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेड डिस्पैरिटी है, ट्रेड जो एक्सपोर्ट ज़्यादा कम करते हैं हम और इंपोर्ट ज़्यादा वहाँ से करते हैं, तो उसको कैसी भरपाई की जाए। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू, हालांकि हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, जेम ज्वेलरी इत्यादि एक्सपोर्ट वहाँ पे कर रहे हैं। जी। और अभी हमारी कोशिश यह भी है कि हम चूंकि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, खासकर सोलर एनर्जी, उसमें हमने काफ़ी अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया है, तो उसको हम एक्सपोर्ट सिंगापुर में भी कर सकते हैं। यानी राजन जी हम देख सकते हैं ना सिर्फ ट्रेड की हम बात करें, टेक्नोलॉजी की हम बात करें, उसके साथ साथ टूरिज्म, ये एक 3T इस तरह का नजर आ रहा है जो कि कहीं ना कहीं भारत और सिंगापुर के जो रिश्ते हैं उनको और मजबूती देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी के लिहाज से, तो यहाँ पर जो भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी जिक्र किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग वो कॉन्वर्सेशन है
कि डिजिटल डिजिटल जो कॉपरेशन, डिजिटल जो दो चीज़ बात की, बहुत जी इंटरेस्टिंग। अगर मैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स जो बोला जाता है, अगर उसकी बात करूं, तो एक लॉरेंस वोंग ने एक बात की कि हम्म डेटा का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, अभी देखिए इशू क्या है कि अमेरिका इस चीज़ को नहीं समझ रहा है कि हमारे सारे जो डेटा है वो कैलिफोर्निया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो वो सारा जो कंट्रोल है हमारा डेटा के ऊपर नहीं है। जी डेटा कंट्रोल कौन कर रहा है अभी के समय में? अमेरिका कर रहा है। यूरोप उसमें डेटा लोकलाइजेशन की बात कर रहा है, पॉलिसी चेंज करने की बात कर रहा है। इसी की चर्चा अभी लॉरेंस वोंग ने अपने जो स्टेटमेंट दी उसमें की। इसका हम्म मतलब यह है कि देखिए, अगर हमको अमेरिका पे दबाव बनाना है, हमें भी डेटा कंट्रोल की बात करनी पड़ेगी। और जी कहीं कहीं हम करते हैं, लेकिन उसको एक पॉलिसी पर्सपेक्टिव से भी करने की जरूरत है, क्योंकि जो हेल्थ का डेटा है, एजुकेशन का डेटा है, कस्टमर हम्म का डेटा है, ये सारा डेटा अमेरिका यूज कर रहा है। और उस पर हम कभी उस ढंग से चर्चा नहीं करते हैं कि उसको क्या अमेरिका से फायदा हो रहा है इनडायरेक्टली, भारत जी के साथ जो रिश्ते हैं। तो इसकी बात लॉरेंस वोंग ने बात की थी। और हमारे प्रधानमंत्री ने रुपे और जो वहाँ पे उसको, जो हमारा जो यूपीआई सिस्टम है, उसको वहाँ पे जो एक्सेप्ट किया गया है, और आप जाएं वहाँ पे तो रुपए के इत्यादि के माध्यम से जो पे कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हम्म उसकी चर्चा की थी। और डिजिटल कॉपरेशन, तो डिजिटल कॉपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अभी के समय में, क्योंकि अमेरिका जिस ढंग से मनमानी कर रहा है, वैसे में आपको डेटा लोकलाइजेशन की बात करनी पड़ेगी, और डेटा जो शेयरिंग है उसके मैकेनिज्म को डेवलप करना पड़ेगा। और अमेरिका जिसका फायदा उठाता है और एक्सेप्ट भी नहीं, एक्नॉलेज भी नहीं करता है, केवल टैरिफ की बात करता है, तो उसमें डेटा लोकलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और डेटा शेयरिंग हमें इंडिविजुअली अब दूसरे देशों के साथ कॉपरेट करके करना पड़ेगा, क्योंकि जो मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स हैं जी वो काम नहीं कर रहे हैं। उसको अमेरिका अभी मान नहीं रहा है ज़्यादातर जगहों पे, तो हम्म इसलिए हमको बायलैटरली इन सारे देशों के साथ हमें डेटा और डिजिटल कॉपरेशन की बात करनी पड़ेगी। जी। जी, बिल्कुल। और तमाम, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए, विश्व में सबसे तेज़ी से उभरती हुई, और कहीं न कहीं ये एक, इसके साथ-साथ हमने देखा सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भी अपना जो भरोसा है जताया, बताया कि ना सिर्फ मित्रता बल्कि जिस तरह का भरोसा वो भारत पर जता रहे हैं, तो वो ज़ाहिर तौर पर दोनों देशों के लिए और ज़्यादा सहयोगी रहने वाला है आने वाले समय में। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर आसियान में मुझे लगता है कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री भारत के लिए है, तो आप देखेंगे कि वो सिंगापुर है। जी, इंडोनेशिया इत्यादि भी है, मैं उनके रोल को डिनाई नहीं कर रहा, उनका साइज़ और इकोनॉमी बहुत बड़ा है, तो उनकी जनसंख्या बहुत बड़ी है। लेकिन सिंगापुर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंगापुर भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। सिंगापुर के जो स्टेटमेंट्स आप देखेंगे कि वो भी एक तरह से चीन और साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, जी। उसमें तरफ उसके संबंध चीन से भी अच्छे हैं, मैं बता दूं उसके संबंध चीन से खराब नहीं है। अब हुँ, 60 लाख का पॉपुलेशन का कोई अगर सिटी स्टेट हो, तो उसका किसी भी देश से संबंध कैसे खराब कर सकता है? जी। लेकिन वो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है कि हुँ, कैसे इन देशों को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखनी चाहिए। तो आसियान में भी, और प्लस चीन और भारत के बीच में स्ट्रेटेजिक कैसे फॉरेन पॉलिसी को ऑटोनोमस रख सकता है उसकी बात करता है। सिंगापुर के संबंध अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं, मैं बता दूं उसका संबंध अमेरिका से खराब नहीं है। जी। तो उसका फायदा सिंगापुर को मिला है। लेकिन सिंगापुर एक का अपना एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी है, एक हुँ, अपना इंडिपेंडेंट माइंड भी है। और बहुत सारे सिंगापुर के स्कॉलर हैं जो कि अभी इस चीज़ को मानते हैं कि अभी जो सेंचुरी है वो एशिया पैसिफिक सेंचुरी है, इंडो पैसिफिक सेंचुरी है, जिसमें कि इंडिया का राइज इनएविटेबल है, जी। चीन का राइज इनएविटेबल है। तो उसमें वर्ल्ड ऑर्डर बदलता जा रहा है, और उसमें सिंगापुर को भारत के साथ भी सहयोग अच्छा रखना चाहिए, और चीन के साथ भी सहयोग अच्छा रखना चाहिए। हुँ, तो उसकी कोशिश सिंगापुर करते रहता है। जी। और उस दृष्टिकोण से देखें कि हमारे डिफेंस कॉपरेशन भी सिंगापुर, अभी कुछ नेवल एक्सरसाइजेस भी होते हैं, हुँ, जैसे कि कुछ पहले ही हुआ था, जिसमें कि सिंगापुर के नेवी विशाखापट्टनम इत्यादि में आए थे। डिफेंस कॉपरेशन हमारा उनके साथ बहुत अच्छा है, और ये सिंगापुर के हित में है। और सिंगापुर मानता है कि चीन के इन्फ्लुएंस को अगर बैलेंस करना है, तो भारत का सहयोग, अमेरिका का सहयोग, जापान का सहयोग सिंगापुर के लिए जरूरी है। जी, बिल्कुल। और ख़ासतौर से राजन जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बात का भी ज़िक्र किया कि 60 वर्ष जो हैं वो पूरे हो रहे हैं जब हम राजनयिक संबंधों की बात करते हैं। और इसी के साथ, क्योंकि अगर पिछले 10 वर्षों की बात की जाए, पिछले वर्ष हमने देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की यात्रा पर भी थे, तो तमाम ये जो पहलू हैं जिनसे कहीं न कहीं दोनों देशों के जब विकास को रफ्तार मिलती हुई नज़र आती है, तो दोनों ऐसे देश जो कि उसके लिए तैयार हैं, और उसी वजह से जो एक दूसरे का जो सहयोग है वो भी अब दोनों देशों को मिल रहा है। बिल्कुल, आपने देखा कि एक उनका डायलॉग होता है, जो आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा। जी, शांग्रीला डायलॉग होता है। शांग्रीला में क्या होता है कि वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो लीडर्स होते हैं वर्ल्ड का, उसको बुलाया जाता है। और उस हमारे यहाँ रायसीना डायलॉग होता है, जी, जिसमें कि बहुत सारे
तो वहाँ पे जो पहली बार भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जो इंडो पैसिफिक जो टर्म और इत्यादि इंडो पैसिफिक भारत की जो स्ट्रेटजी है उसकी बात की थी, वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था पूरे विश्व में, क्योंकि इससे पहले एशिया पैसिफिक बोला जाता था और उसके बाद से इंडो पैसिफिक, क्यों इंडो, इंडिया सेंट्रल है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए, तो उसकी बात वहाँ पे की थी। उसके बाद पिछले साल भी प्रधानमंत्री वहाँ पे गए थे 2024 में, और फिर जो भारत एक और बात की थी प्रधानमंत्री ने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो आसियान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो जिसकी बात प्रधानमंत्री ने की वो सिंगापुर के साथ जी है। बिल्कुल, फिलहाल रोकना चाहूंगा आपको, सीधा आइए रुक कर लेते हैं। भाजपा वक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। शुरू करें। मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद आदरणीय संबित पात्रा जी आप सबके बीच उपस्थित हैं। आदरणीय संबित जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रेम शुक्ला जी, और आप सभी का बहुत अभिनंदन है। और प्रेम जी, आप तो अभी गणपति उत्सव मना के महाराष्ट्र से लौटे हैं और नवरात्र आरंभ होने वाला है, मगर नवरात्र से पहले ही पूरे देश में खुशी का माहौल है। आज सुबह जब मैं तमाम अखबार लेके आया हूँ, कोई एक दो अखबार नहीं, तमाम अखबार लेके आया हूँ, और आज सुबह जब चाय के साथ, चाय की भी जीएसटी अभी 0% पे है, जब वैट था तो वो 6% था, तो चाय की चुस्कियों के साथ जिस चाय का रेट 6% वैट से कम होकर 0% जीएसटी पे आज स्थापित हुई है, उस चाय की चुस्की के साथ जब सारे अखबार पढ़े गए तो अखबार की हेडलाइंस आज कमाल के हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला हेडलाइन है। जीएसटी रेट्स कम हुए हैं। बाजार 22 सितंबर से, जब से नवरात्र शुरू होगा, बाजार में सस्ते माल अर्थात सभी के लिए हर आइटम एक तरह से सस्ता होने वाला है, और हर वर्ग के लिए खुशखबरी है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मेडिसिन खरीदने वाला कोई पेशेंट हो, हॉस्पिटल जाने वाला, चाहे वो आम गृहिणी हो, चाहे एक साधारण काम करने वाला ऑफिस में व्यक्ति हो, चाहे घर के बच्चे हों, हर किसी के लिए यहाँ खुशखबरी है। तो मैं चाहता हूं कि आज, इससे पहले कि अधिक मैं बोलूं, एक आम नागरिक की तरह आपके सामने कैसे प्री जीएसटी एरा, जीएसटी आरंभ होने से पहले के समय और आज जो जीएसटी काउंसिल की बैठक के पश्चात जो रिफॉर्म्स आए हैं, उसका एक कंपैरेटिव डाटा आपके सामने रखूं, और किसको कितना लाभ हुआ है यह हम आम भाषा में समझें, बिना कॉम्प्लिकेशन के। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो रोटी, खाना, इस पे क्या असर पड़ेगा? आप देखिए, दूध जिस पे जीएसटी आरंभ होने से पहले 6% का वैल्यू एडेड टैक्स था, कांग्रेस के जमाने में 6% का वैल्यू एडेड टैक्स था, आज उसे 0 कर दिया गया है, उस पे कोई जीएसटी नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार दही, लस्सी, छाछ, आप देखिए नॉर्थ इंडिया में दही, लस्सी, छाछ के बिना, क्यों मैं ठीक बोल रहा हूं ना रवि जी, हरियाणा के लोग, हमारे पंजाब के लोग, दही, लस्सी, छाछ, उसके बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है। तो स्वाभाविक रूप से उस पर भी जिस प्रकार मात्र अब उसे कमा करके 5% कर दिया गया है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग है, बहुत बड़ी बात है। आप देखिए 31%, बच्चों की बात मैंने की थी खाने पीने के विषय में, बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, 31% का वैट था चॉकलेट के ऊपर, जो अब की कम होकर 5% हो गया है। दिवाली में, नवरात्र में मिठाई सब पसंद करते हैं, 21% का वैट था मिठाई के ऊपर, जो अब कम होकर 5% हो गया है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। गेहूं, चावल, आटा, गेहूं पे 2.5% वैट था प्री जीएसटी एरा में, अब 0% जीएसटी है। चावल, राइस
2.75% उस पे वैट था और अब 0% जीएसटी है चावल के ऊपर। मैं तो उड़ीसा से आता हूं, चावल खाने वाला प्रदेश है, हम चावल पसंद करते हैं। तो उड़ीसा के लिए, बंगाल के लिए, बिहार के कई अंचलों में, कई स्थानों पे चावल खाया जाता है। असम के लिए ये बहुत खुशखबरी का विषय है। आटा, अब आटा कांग्रेस के ज़माने में, राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपके ज़माने में आटे पर 3.5% यह टैक्स लगता था 1 लीटर आटे पे, लीटर नहीं सॉरी, केजी। 1 केजी आटे पर 3.5% टैक्स लगता था, अब उसे 0 कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार सोयाबीन का तेल और ग्राउंडनट का जो तेल है 6% का जिस पे वैट लगता था, अब उस पे 0% का जीएसटी लगता है। मैंने अगर नॉर्थ इंडिया की बात की और मैंने छाछ और दही की बात की, तो हम सब, चाहे हम नॉर्थ इंडियन हो चाहे हम साउथ इंडियन हो, पूरे भारत को इडली डोसा तो पसंद है। उसके बिना आज ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए जो डोसा और इडली का बैटर होता है, उस डोसे और इडली के बैटर पे जहां पहले 12% टैक्स था, उसे घटा करके 5% टैक्स कर दिया गया है। तो मैं तो कहूंगा चलिए इडली डोसा जरूर आप खाइए, नाश्ते पर खाइए और भारतवर्ष का गुण गाइए। आजकल पानी, बॉटल्ड मिनरल वाटर हम सबके जीवन का एक अंग बन गया है। आप पत्रकार हैं, बहुत धूप में खड़े रहते हैं, मैं देखता हूं आपके हाथ में एक बॉटल मिनरल वाटर जरूर रहता है। मैं देख रहा हूं आपके हाथ में भी है, बॉटल मिनरल वाटर है। तो स्वाभाविक रूप से जिस पर 27% का टैक्स था बॉटल मिनरल वाटर पे वैट के माध्यम से, जब वैट का जमाना था, जब गांधी परिवार का जमाना था, तो 27% टैक्स लगता था बॉटल मिनरल वाटर पे, और आज 5% टैक्स लगता है जीएसटी पे। ये तो खाने पीने का विषय था। अब हम आते हैं हाउस होल्ड एसेंशियल्स और एफएमसीजी। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कॉमर्शियल गुड्स। हम दुकान पे जाते हैं और तुरंत साबुन, तेल, जो पैकेट्स उठाते हैं, जो एकदम पेरिशेबल आइटम्स फटाफट उठाया हमने, वो एफएमसीजी होता है। और जो घर पे हम कॉमन यूज करते हैं, उनका क्या हुआ है? शुरू से शुरू करते हैं, आरंभ। सो के उठने के बाद टूथपेस्ट लगा करके टूथब्रश करना। तो जो टूथपेस्ट था, उस टूथपेस्ट पर 27% वैट लगता था। 27% वैट था टूथपेस्ट पर, अब वो घट करके 5% हो गया है। हम सब मिडिल क्लास से आते हैं, हम सबके लिए ये एक्सपीरियंस रहा होगा। सुबह उठकर जब आप टूथपेस्ट लगाते थे तो घर में कोई ना कोई बड़ा, माताजी या पिताजी जरूर देखते थे कि ये बच्चा थोड़ा सा लगाया है या पूरा लगाया है। टीवी देख के एडवर्टाइजमेंट हम लोग को मन होता था कि पूरा लगा दे, टूथपेस्ट लगाना मतलब पूरे पे लगाना है। मगर पिताजी मम्मी बोलते थे नहीं बेटा, इतने से ही काम चलाना है। और तो और महीने के अंत पे वो टूथपेस्ट को मोड़ मोड़ के वो दिखता नहीं था, वो पूरा गोल घूमकर स्पाइरल बन जाता था। इस प्रकार की हमारी जिंदगी होती थी। याद करिए, वो भी एक जमाना था। 27% का वैट था। और अब माता पिता बाकी काम करते हैं, ये देखने नहीं आते हैं कि टूथपेस्ट को मोड़ा जाए या इतना सा लगाया जाए या थोड़ा अधिक लगाया जाए। जमाना बदल गया है। मोदी जी के ज़माने में टूथपेस्ट पे 27% से घटा करके 5% टैक्स लगेगा। ठीक उसी प्रकार टूथ पाउडर पे भी 17% से घटा करके 5% अब टैक्स लगेगा। साबुन और तेल, यह भी जो एसेंशियल आइटम है, उस पे भी 27% वैट लगता था, अब उस पे मात्र 5% जीएसटी लगेगी। इच्छा करते हैं, हमारे जमाने में 10th क्लास पे फर्स्ट होने पर साइकिल दी जाती थी। हम लोग सब हंस रहे हैं, जो थोड़े हमारे उम्रदराज भाई है, मेरे उम्र के हैं, वो सब हंस रहे हैं, क्योंकि हम सब की जिद होती थी साइकिल खरीदो। तो पापा कहते थे 10th में अच्छा मार्क लाओ, साइकिल खरीदूंगा, और साइकिल आती थी इसी प्रकार घर में। आज साइकिल जो है, जिसपे कि 16% का वैट था, घट करके जीएसटी 5% हो गया है। ठीक उसी प्रकार
हमने घरों में देखा है सिलाई की मशीन, कई बार हमने भी खुद कोशिश की है और सफलता भी पाया है। सिलाई की मशीन में जल्दी जल्दी कुछ करके माताजी को इंप्रेस करने की कोशिश हम में से कई लोगों ने किया है। और वो सिलाई मशीन पर 16% वैट लगता था, अब 5% वैट लगेगा। ठीक उसी प्रकार पूजा कर, नहा धो के साबुन, तेल, टूथब्रश, टूथपेस्ट सब हो गया। अब पूजा करते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं तो पहले 10% का वैट था अगरबत्ती पर, अब 5% की मात्र जीएसटी लगेगी। अब न्यूज़ देखना है आपको, सुबह आप तैयार हो गए हैं, पूजा पाठ भी समाप्त हो गया है, तो न्यूज़ देखना है तो आपके पास टेलीविज़न है। टेलीविज़न भी आजकल आप नए खरीदते हैं, तो टेलीविज़न हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, जूसर हो, गीज़र हो, फैंस हो, वैक्यूम क्लीनर हो, जो कि एक मेरुदंड है मिडिल क्लास के परिवार का। मिडिल क्लास के परिवार में ये सारी चीज़ें होती है, गीज़र होता है, फ़ैन होता है, एसी होता है, कूलर होता है। ये सारी चीज़ों पे जिस पे पहले वैट 31.3% का था, अब जीएसटी उस पे 18% का है। 31% से घट करके अब 18% पे आया है। ठीक उसी प्रकार डिश वॉशर और एलईडी मॉनिटर्स पे भी अब जो रिड्यूस्ड रेट है वो 18% का है। हम अब कपड़ों पे आते हैं। कपड़े की इंडस्ट्री को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जो यार्न्स है, जो सूत है जिस पर कपड़े बनते हैं, फाइबर्स और यार्न्स है, उसका वैट का रेट 18% था, जो अब जीएसटी में मात्र 5% रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार कारपेट, रग्स, मैट्स, टॉवेल्स, लेसेस, एम्ब्रॉयडरी, ये 12% से घट के 5% हो जाएगा। अब मैं डॉक्टर हूं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पूरे इस जीएसटी के प्रांगण में जो रिफॉर्म हुआ है वो कहीं ना कहीं मेडिकल फैटर्निटी को लेकर हुआ है। मरीजों के लिए एक बहुत अच्छी बात है और हम सब के लिए इंश्योरेंस के माध्यम से एक खुशखबरी है। आप देखिए, जो एसेंशियल मेडिकल आइटम्स थे, जैसे एनेस्थीसिया के हो गए, कोई भी ऑपरेशन होता है एनेस्थीसिया की आवश्यकता होती है, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, डायग्नोस्टिक किट्स हो गए, ब्लड शुगर मॉनिटर्स, ग्लूकोमीटर इत्यादि हो गए, सर्जिकल ग्लव हो गए, बैंडेजेस हो गए, इन सब के ऊपर 12% से टैक्स घट करके अब मात्र 5% लगेगा। तो मेडिकल सेक्टर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उसके साथ ही जो हाई कॉस्ट मेडिकल इक्विपमेंट है, जैसे कि एक्सरे का मशीन, जैसे कि रेडियोथेरेपी की मशीन, जो कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी दी जाती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रीदिंग एड्स, थर्मोमीटर, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब पे 18% या 12% से घट करके अब स्लैब 5% पे फिक्स किया गया है। तो कंसिडरेबल डिक्रीज इन मेडिकल एक्सपेंसेस भी होगा। अब एनेस्थीसिया का मशीन कम है, इंस्ट्रूमेंट्स की प्राइस घट गई है, तो स्वाभाविक रूप में कंज्यूमर के पास ये बेनिफिट जाने वाला है। और सबसे बड़ा छलांग जो इस जीएसटी रिफॉर्म ने लगाया है, मेरे हिसाब से हेल्थ और इंश्योरेंस सेक्टर में लगाया है, जिसमें कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है उसे 0 कर दिया गया है। पहले 18% पे था, वो वैट के जमाने को याद करिए, 18% से अब उसे 0 पे लाया गया है। और मैं आज सभी से ये निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि भारत सरकार ने ये प्रमोट किया है कि हम सब अपने जीवन का, हम सब अपने स्वास्थ्य का बीमा करें। उस पे 0% टैक्स है। हमारा जीवन कीमती है, हमारा स्वास्थ्य कीमती है, इसको इंश्योर्ड करें 0% टैक्स पे। ठीक उसी प्रकार हमारे जो किसान भाई हैं, किसान भाइयों के लिए भी बहुत खुशखबरी है। मैं तो ये जरूर कहना चाहूँगा कि यह सरकार किसानों की है। और जो फिक्स्ड स्पीड डीजल इंजन ट्रैक्टर वाली, जो 15 हॉर्स पावर से बराबर या नीचे की है, या ट्रैक्टर का रियर टायर या ट्यूब्स है, उस पे पहले 16% का वैट लगता था, 16%। अब वो घट करके 5% जीएसटी रह गई है। जो लोग किसानों की बात करते थे, जो लोग अभी विपक्ष में हैं, उनके समय ट्रैक्टर पे अगर 16% लगता था, तो मोदी जी के समय अब रिफॉर्म्स में 5% का जीएसटी लगता है। ठीक उसी प्रकार ये जीएसटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फार्म कंस्ट्रक्शन पे है, फार्म कंस्ट्रक्शन का भी 28 से 29% घटा करके उसे 18% कर दिया गया है। हैंडपंप,
इरिगेशन सिस्टम, कंपोस्ट मशीन, फर्टिलाइजर इनपुट्स, जो फर्टिलाइजर जिससे बनती है, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, बायोपेस्टिसाइड्स, इन सारे का टैक्स रेट घटा के 12% पहले था, अब उसे 5% कर दिया गया है। ट्रैक्टर के लिए तो और भी खुशखबरी है। ट्रैक्टर पार्ट्स, ट्रैक्टर के चक्के, व्हील्स, बम्पर्स, हाइड्रोलिक पंप्स, स्टीयरिंग व्हील, ये सारे जो 18% टैक्स स्लैब पे थे, अब ट्रैक्टर के ये सारे पार्ट 5% टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। मुझे तो दिख रहा है कोई किसान पंजाब में, वो सनी देओल जी का कोई गाना था ना, वो मैं निकला ट्रैक्टर लेके, मैं निकला ट्रैक्टर लेके, सड़क पर एक मोड़ आया, सारे टैक्स छोड़ आया, सारे टैक्स में उस मोड़ पे छोड़ आया। 75 साल से ट्रैक्टर लेके हमारा किसान निकला था, मगर अब एक मोड़ ऐसा आया है जहां वो सारे टैक्स छोड़ आया। आप सोचिए, मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से बताया, मगर एक किसान की खुशी आप समझिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस खुशी को बयान नहीं कर सकता है। गांव में जब किसान को लगता है मेरी ट्रैक्टर सस्ती हो गई है, जब घर में बच्चे को लगता है मेरी साइकिल अब आ जाएगी, और सबसे बड़ी बात है मिडिल क्लास फैमिली को जब लगता है छोटे कार और मोटरसाइकिल ये सस्ते हो गए हैं, तो उनके जीवन में कितनी बड़ी खुशी आती है, कितना बड़ा छलांग आता है। ये आप सोचिए, जो छोटे कार थे पेट्रोल डीजल के 1200 से 1500 सीसी तक के, और जो मोटरसाइकिल से 350 सीसी तक के, मोपेड हाइब्रिड व्हीकल्स जो हैं, 3 व्हीलर्स जो थे, इन सब पे 28% टैक्स था, अब वो 18% के स्लैब पे आ गए। तो इस दिवाली आप देखिएगा बहुत सारे लोग हमारे, बहुत बंधु कार खरीदेंगे और एक खुशी आएगी। बहुत सारे युवक इस बार बाइक्स खरीदेंगे, बाइक्स की भरमार आएगी, मगर हेलमेट पहनना मत भूलिएगा, जरूर हेलमेट पहनिएगा, सेफ्टी के साथ चलिएगा। बाइक की खुशी में सेफ्टी नहीं भूलना है, तो बाइक्स लेंगे लोग। 3 व्हीलर्स, ऑटो चालक, उनकी संख्या में और उनकी खुशी में बढ़ोतरी होगी। बंधु सारे विभाग के हैं मेरे पास, मगर मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मूल सार है वो आप समझ रहे हैं। मैं बड़े बड़े उद्योगपतियों ने क्या कहा है वह भी मेरे पास अखबारों में है। कोई कह रहा है कि सेटिंग द टोन फॉर मोर रिफॉर्म्स इन द नियर फ्यूचर, न्यू फाउंड सेंस ऑफ पर्पस टू मेक इट सिंपल, ओरिजिनल फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी हैज नाउ बीन इफेक्टिवली रीइंस्टेटेड, वर्किंग कैपिटल विल बी अनलॉक्ड, क्रेडिट ब्लॉकेजेस टू बी इरेज्ड। अब देखिए, मुख्यतः 2017 जब से जीएसटी आरंभ हुआ, किस प्रकार से जिस जीएसटी को पुरानी सरकारें लागू नहीं कर पाती थी, अब वो जीएसटी लगी, और 2007 से अब तक के सफर में जो रिफॉर्म्स आज हुए हैं उसमें नंबर 1, 3 दिन के अंदर आप रजिस्टर हो सकते हैं। ईज ऑफ बिजनेस, जो छोटी कंपनियां हैं वो, उनकी ईज ऑफ बिजनेस कितनी बढ़ जाएगी आप जरा चिंता करिए। टेक्सटाइल एपरल्स की, बाकी सारी छोटी बिजनेस की ईज ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगी। और हम सब के जिंदगी में ईज ऑफ लिविंग, टूथपेस्ट, साबुन, तेल से लेके गाड़ी मोटर इत्यादि तक, टीवी फ्रिज से लेकर पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, बच्चों के नोटबुक, ये सारी चीजें, एक है ना थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। आप बच्चे की पेंसिल और बच्चे की इरेजर, बच्चे के नोटबुक, बच्चों का ज्योमेट्री बॉक्स, इसे भी छोटा मत समझिए। इन पे भी जो भारी रिडक्शन हुई है, लगभग 0 पे लाके खड़ा किया गया है जीएसटी इस पे, ये हमारी आम जिंदगी को बदलता है। ये केवल एक रिफॉर्म्स नहीं है, रिफॉर्म तो एक अंग्रेजी शब्द है, ये खुशियों का बयार है, ये एक बहुत बड़ी चेंज है। और मुझे लगता है जिन लोगों को ये असंभव लगता था कि कभी हम जीएसटी ला पाएंगे, उनके लिए भी ये सोचने का विषय है। और जो लोग रह रहे के, मैं अंत में कहना चाहूंगा, जो लोग रह रहे के मोदी जी के परिवार को गाली देते हैं, वो ये समझ ले कि निरंतर अथक परिश्रम करके मोदी जी और उनकी सरकार ने, जो हमने कभी आशा नहीं किया था, 7.8%, कहीं भी ये प्रेडिक्शन नहीं था कि 7.8% का इस क्वार्टर का ग्रोथ होगा, जीडीपी होगा, 7.8% का ग्रोथ रेट रहा। किसी ने नहीं सोचा था कि 17.5 वर्ष की हाईएस्ट
पेडेस्टल पे, हम मैन्युफैक्चरिंग पे खड़े होंगे, आज हम खड़े हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो सबसे कम होगा, और वो आज 1.5% पे है। वो इन्फ्लेशन 8 साल में सबसे कम है। किसी ने नहीं सोचा था कि हम फास्टेस्ट मूविंग मेजर इकोनॉमी होंगे, आज हम फास्टेस्ट मूविंग मेजर इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है, और 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मोदी है तो मुमकिन है। धन्यवाद। आप लोगों के प्रश्न हैं? सर, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये 9 सालों के बाद रियलाइज हुआ कि ये टैक्स जो इतने ज्यादा है, और फाइनली राहुल गांधी के एडवाइस को सरकार ने माना है। See, I'm astonished कि such a question has been asked by the Congress party. 75 साल देश ने उन्हें दिए, कांग्रेस पार्टी को दिया, गांधी परिवार को दिया, और इन 75 वर्षों में गरीबी हटाओ का आंदोलन पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके उपरांत उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उसके पश्चात उनके बेटे राजीव गांधी, उसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी और कांग्रेस की अध्यक्षा, और एक तरह से द शैडो प्राइम मिनिस्टर कहने से ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, और उसके बाद राहुल गांधी जी को मौका नहीं मिला। गरीबी हटाओ का आंदोलन इन सभी लोगों ने दिया। सिर्फ गरीबी हटाओ का इन्होंने नारा दिया, गरीबी नहीं हटाया। उनके पास वो अपॉर्चुनिटी थी कि वो जीएसटी ला सके। मीटिंग दर मीटिंग, कमीशन दर कमीशन बैठाया गया जीएसटी लाने के लिए, यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर लाने के लिए, और जो कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर भारतवर्ष में था, जो एक कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर था, उसको सिंप्लीफाई करने का उनके पास मौका था, मगर उन्होंने वो हिम्मत नहीं जुटाई, उनका वो कंसेंसस नहीं बन पाया। 2014 में मोदी जी की सरकार आई, जज्बा भी था, ईमान भी थी। We had the intention also, we had the courage also, and we had democracy on our side to bring consensus of all. सबको बैठा करके कंसेंसस बनाने, उन राज्यों को भी, तमिलनाडु, बंगाल जैसे राज्य जो तैयार नहीं हो रहे थे पहले, उन राज्यों को बैठा करके उनके भी भले की चिंता करके जीएसटी लाया गया 2017 में। ये तो लाभ ही नहीं पा रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं? अब इतना कुछ बोल रहे हैं, ला नहीं पा रहे थे जीएसटी। और जहां तक यह कहना कि राहुल गांधी के कहने पर हुआ है, देखिए भैया, गांधी परिवार के कहने पर तो ये सूर्य चंद्र भी आत जात करते हैं। ये गांधी परिवार ही कह रही तो ब्रह्मांड है, वरना ब्रह्मांड थोड़ी होता। आप बताइए भारतवर्ष होता क्या अगर गांधी परिवार नहीं होती? ये इनकी मानसिकता है कि सब कुछ इनके कहने पर हो रही है। और मैं केवल प्रवक्ता के नाते नहीं, एक साधारण व्यक्ति के नाते कहता हूं, जब भी भारतवर्ष में कुछ अच्छा होता है, भारत की आम जनता खुश होती है, तब कांग्रेस को मातम बनाने का पूरा मौका मिलता है। राम मंदिर बन जाए तो ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, हम तो बोल रहे थे, हम तो कर रहे थे। आप अगर देख लीजिए आर्टिकल 370 आ जाए, पूरा भारत खुश रहेगा, कांग्रेस मातम मना रही होगी कि हम तो बोल रहे थे कर दो, हम तो ऐसा कर रहे थे, हम तो वैसा कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर हो जाए तो इनको मुश्किल है, पार्लियामेंट में इनको डिबेट करना है, वहां पर भी मुंह की पटकनी खानी पड़ती है इनको। एयर स्ट्राइक हो जाए तो इनको मुश्किल हो जाती है, और जीएसटी आती है तो मुश्किल होती है, जीएसटी रिफॉर्म होता है तो मुश्किल होती है। तो मुझे लगता है जो मुश्किल में है, जिसको पीड़ा है उसको पीड़ा ही रहेगी, उसकी पीड़ा दूर नहीं हो सकती है। और जो अच्छे करने वाले हैं वो अच्छा ही करते रहेंगे, जिसका जैसा। तो आप देख रहे थे यहाँ पर बीजेपी की प्रेस वार्ता, जिसमें संबित पात्रा ने सीधे तौर पर कहा कि जीएसटी के जो नए स्लैब आए हैं उसके चलते कितना फ़ायदा जो है वो हर तबके को मिलेगा, हर वर्ग को मिलेगा। और यहाँ पर खासतौर से उन्होंने जिक्र किया गरीब और खासतौर से किसानों की भी अगर बात की जाए, कृषि क्षेत्र में जिस तरीके से बदलाव किया गया है, और साथ ही अगर बात की जाए स्टेशनरी की, उसमें बदलाव हुआ है। तमाम वो खासतौर से क्षेत्र जहां पर इसका सीधा फ़ायदा जो है वो मिलने जा रहा है, उन तमाम बातों का जिक्र किया। संबित पात्रा ने बताया कि किस तरीके से पहले हम देखते थे 12 और 18 का भी जो स्लैब था उसको एक तरीके से ख़त्म किया गया है, और
अगर देखा जाए उसकी जगह 5% पर कृषि क्षेत्र में उन्होंने यहाँ जिक्र किया। ट्रैक्टर की बात की जाए, दूसरे जो कुप्रजे हैं उनकी बात की जाए, कितना लाभ इसके ज़रिए जो आम आदमी है, खासतौर से किसान है, गरीब आदमी है, उसको मिलने जा रहा है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर विपक्ष पर भी निशाना साधा कि इससे पहले की अगर बात की जाए, वैट लगाया जाता था। मिठाई का उन्होंने जिक्र किया कि पहले 21% वैट उस पर लगता था, लेकिन अब 5% है। तो मुँह मीठा कीजिए, क्योंकि अब जो खर्चा है वो कम होगा, बचत ज़्यादा होने वाली है। इस पर हम और बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पता है आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त DD न्यूज पर। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। सुन, तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। आपके साथ लगातार हम बातचीत कर रहे हैं GST में हुए जो खासतौर से GST रिफॉर्म की बात की जाए, ऐतिहासिक बदलाव इसमें देखने को मिल रहा है। दरअसल GST काउंसिल की 56वीं बैठक में अगली पीढ़ी के GST सुधार किए गए हैं। 2 दिन की बैठक में रोजमर्रा की चीज़ों पर टैक्स कम करने के साथ ही स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई सामानों पर GST दरों में कमी की गई है। खासतौर से नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म के तहत अब क्या बदलाव हुए हैं और इनसे देश के करोड़ों लोगों को किस तरह का फायदा मिलने वाला है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हम नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म की घोषणा की थी। इन सुधारों का उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की 56वीं बैठक की सिफारिशें प्रधानमंत्री के उसी संकल्प को पूरा करती नजर आ रही हैं। GST परिषद ने छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के साथ साथ सभी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। इन सुधारों के जरिए आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योग, किसान और कृषि के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है और दरों को कम किया गया है। मौजूदा 4 स्तरीय टैक्स रेट ढांचे को आम लोगों के फायदे के लिए अब सिर्फ 2 दर संरचनाओं में ढाला गया है, 18% का स्टैंडर्ड रेट और 5% का मेरिट रेट। इसके साथ ही कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% का विशेष डीमेरिट रेट रखा गया है।
जीएसटी में नए सुधारों से आम आदमी की रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर बड़ी बचत होगी। इनमें हेयर ऑयल, शैम्पू, मक्खन, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड, पैक्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर शामिल हैं। वहीं बर्तन, फीडिंग बॉटल, नैपी और बच्चों के डायपर में 5% जीएसटी की नई दर से लोगों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कमी करके देश की सेहत को दुरुस्त करने का भी प्रयास किया है। सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी और निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है। थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट और टेस्ट स्ट्रिप्स सहित नजर के चश्मों पर 5% जीएसटी लगेगा। हेल्थ रिलेटेड आइटम्स, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, एंड दे ऑल कम डाउन फ्रॉम 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों के जरिए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। ट्रैक्टर के साथ ही उसके टायर और पुर्जों पर जीएसटी अब 5% रहेगा। कृषि आधारित वस्तुओं और मशीनों पर भी जीएसटी में कमी की गई है। छोटी कार और बाइक खरीदने वालों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 1200 सीसी पेट्रोल और डीजल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार और 1500 सीसी डीजल और हाइब्रिड कारों पर 18% जीएसटी कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 पहिया वाहन और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल और माल ढुलाई वाले मोटर वाहनों पर जीएसटी की दर को घटाकर 18% कर दिया गया है। जीएसटी में सुधारों से बच्चों की पढ़ाई का खर्च कम करने की भी कोशिश की गई है। पेन, पेंसिल, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल शार्पनर, क्रेयॉन्स, ब्लैक बोर्ड, कॉपी, नोटबुक्स और इरेजर पर जीएसटी दर अब 0 हो गई है। त्योहारी सीजन में एसी और टीवी पर ऑफर्स की बहार होती है। अब सरकार ने इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी दर में कमी करके आम आदमी की बचत कराई है। एसी, 32 इंच से बड़े एलईडी और एलसीडी टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिश वॉशिंग मशीन पर 18% जीएसटी लगेगा। ये जीएसटी सुधार हर भारतीय के लिए दिवाली का तोहफा है। इससे आम जनता के लिए टैक्स में भारी कमी होगी। एमएसएमई और छोटे उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने आखिर क्यों इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म से आम लोगों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि इन जीएसटी सुधारों से लोगों का जीवन जो है आसान होगा और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में काम में आने वाली प्राय हर चीज, चाहे खाने से संबंधित हो, चाहे पहनने से संबंधित हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे घर में टीवी, स्कूटर से संबंधित हो, चाहे घर में वॉशिंग मशीन से संबंधित हो, हर चीज पर जीएसटी की दरें एक बड़ी मात्रा में कम की गई है। तो हर कोई यहाँ पर खुश है। जीएसटी की दरों में जिस तरीके की बड़ी कटौती यहाँ की गई है, लेकिन खासतौर से जो खुशी जब हम बात करते हैं किसानों की, हमने देखा किस तरीके से फिर चाहे जो कृषि के उपकरण हैं वहाँ पर भी इसका सीधे तौर पर जो असर है पड़ता नजर आएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। संदीप दास जी कृषि पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे समझना चाहूँगा, जब हम भारत की कृषि को देखते हैं, पिछले 1 दशक में एक बड़ा बदलाव देखा है और ये जीएसटी रिफॉर्म को अगर देखा जाए, किस तरीके से किसानों को लाभ मिलने जा रहा है? देखिए, एक जो जीएसटी का दर घटाया गया है उसके साथ इसको एक रेट रैशनलाइजेशन भी बोला गया है। जो बहुत सारी चीज़ों में एग्रीकल्चर इनपुट्स बोला जाए, ट्रैक्टर का टायर है, बहुत सारी चीज़ों है जिसको 5% कर दिया गया। उसमें ओबियसली जो इनपुट कॉस्ट है, जो किसान जो कल्टिवेशन करता है उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि 5% जीएसटी पहले बहुत ज़्यादा था इससे, तो वो एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट है। और जो कंज्यूमर साइड से बेसिकली एग्रीकल्चर लिंक्ड है, जो तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स है, रोटी जो ब्रांडेड रोटी होता था उसको भी एक रैशनलाइज करके रखा गया है। तो इसका तमाम असर जो कंज्यूमर साइड एज वेल एज एग्रीकल्चर साइड में मिलेगा, क्योंकि हम आमतौर पर ये दिखाई कि जब रेट कम होते हैं तो ऑब्वियसली कंजम्पशन अप होता है उसका। तो एग्रीकल्चर इनपुट्स ले लीजिए, बहुत सारे स्प्रिंकलर इरिगेशन, जो आजकल ड्रिप इरिगेशन जो इक्विपमेंट्स है उसका भी दाम रैशनलाइज करके 5% में कर दिया गया सारी चीज़ों को। तो वो तमाम चीज़ें। और एक चीज़ छोटा बात है, एक अमोनिया और जो फर्टिलाइजर जो किसान को मिलता है सब्सिडी रेट पे, उसमें भी कम कर देगा जीएसटी में। तो वो तमाम चीज़ों में जो इनपुट कॉस्ट है और जो कंज्यूमर प्राइस है, दोनों में एक बहुत कम होने की आसार है। तो इनपुट कॉस्ट कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो
जो थोड़ा सा सामान का चीज़ें सस्ती दर में मिलने लगेंगे मार्केट में, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ओवरऑल एक पूरा क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर वैल्यू चेन का अप्रोच लेके इसको देखा गया है। यानी अगर कुल मिलाकर संदीप जी देखा जाए, ना सिर्फ किसानों की जो जीवन शैली है उसमें एक बड़ा बदलाव नजर आएगा, उसमें हम कह सकते हैं बेहतरी की ओर वो है, और उसके साथ साथ जो उत्पादन है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ हमारा जो खर्च था वो सीधे तौर पर कम होगा। सीधा सा बात होता है कि जो प्राइस सेंसिटिव जो होता है, कभी भी जैसे हम बहुत तरह के रेट्स थे पहले, जो रोटी में अलग था, ब्रांडेड रोटी, चपाती और बहुत सारे तमाम चीज़ों में, डेयरी मिल्क उसमें था, तो उसको जो 5% कर दिया तो उसमें से क्या होता है, तो प्राइस ओबियसली रिटेल प्राइस जो है वो भी कम होगा, वो कम होने से कंजम्पशन बास्केट वो बढ़ेगा, उसका बढ़ने से किसान का जो आय बढ़ेगा, उसका हिसाब से सबसे बड़ा चीज़ है जो इवन जो बोला जाता है कि जो डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हालांकि इट्स ट्रू फॉर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी, कोई भी चीज़ का दाम अगर कम होता है तो उसका असर उसका कंजम्पशन में पड़ता है, तो कंजम्पशन बढ़ता है तो किसान ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा, तो ये पूरा चेन है। ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए वो इनपुट कॉस्ट कम किया गया है, जो जितना भी इक्विपमेंट एग्रीकल्चर इनपुट्स है और बहुत सारे तमाम चीज़ों में दिया गया, फर्टिलाइजर में दिया गया। हमने जो कृषि है इसको प्रधानमंत्री कहते हैं आधुनिक कृषि हमें पूरी तरीके से बनाना है, और इसमें मशीनरी की भूमिका काफ़ी अहम है। मशीनरी पर हम देख पा रहे हैं उसमें भी जो GST में कटौती है वो अच्छे पैमाने पर की गई है। ट्रैक्टर की बात की जाए, उनके पार्ट्स की हम बात करें, या दूसरी जो कटिंग मशीन है उनकी बात की जाए, ट्रैक्टर देखिए, ट्रैक्टर एक आम हो गया, हर किसान के लिए ट्रैक्टर जरूरत पड़ता है, उसमें जो टायर है उसके लिए भी GST कम कर देगा है जी। तो ओवरऑल इवन जो आप व्हीकल सब टू व्हीलर व्हीकल में भी जो कम करते हैं उसका भी किसान भी काफ़ी यूज़ करते हैं, जो टू व्हीलर का बातें आप कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उसका भी इनपुट्स को वो सारी चीज़ें कॉस्ट होता है किसान के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रैशनलाइज होगा, कम होगा, तो कॉस्ट ऑफ कम होगा तो ऑब्वियसली तमाम जो उधर कंज्यूमर डिमांड जब बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द लोअर प्राइस, तो उसका असर सीधा किसान का इनकम के ऊपर पड़ेगा। एंड सरकार ने पहले कहा है कि जो GST का जो रैशनलाइजेशन लिया कम किया गया है, इसका असर फिस्कल इम्प्लीकेशन में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली टैक्स नेट इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा टैक्स होगा, तो ये एक ओवरऑल एक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं कहूँगा, ये बहुत बड़ा स्टेप्स है, मेजर स्टेप टुवर्ड रैशनलाइजिंग स्ट्रक्चर, GST स्ट्रक्चर और रिड्यूसिंग जो तमाम खाने वाले चीज़ में, इस सब चीज़ में बहुत सारे कम हो गए, 5% की तरफ आ गए। बिल्कुल। क्या एक जो समस्या किसानों की रहती थी कि जो हमारा खर्च है वो बढ़ रहा है, तो क्या उसको ध्यान में रखते हुए हम मान सकते हैं, क्योंकि तमाम जो लागत है उस पर इसका सीधा असर हम देख पाएंगे, लागत कम होगी तो शायद वो जो खर्च था वो धीरे धीरे कम होगा और किसान जो है वो भी अपनी जो बचत है उसको बढ़ा पाएंगे। डेफिनेटली इनपुट कॉस्ट, देखिए बहुत सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं, इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ता है, क्योंकि किसान को बहुत से चाहिए, ट्रैक्टर भी चाहिए, उसको डीजल भी चाहिए और इनपुट कॉस्ट सीड वगैरह होता है, तो वो इनपुट कॉस्ट के चक्कर में इनपुट का जब कम होगा तो किसान का ओब्वियसली इनकम बढ़ेगा, क्योंकि दो तरह से इनकम बढ़ेगा। वन इज दैट इमीडिएटली उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स है वो कम हो जाएगा जी, और उधर कंजप्शन जब बढ़ता है तो उस डिमांड फॉर गुड्स, उसका जो डिमांड है वो बढ़ेगा, तो किसान को ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने से उसका इनकम बढ़ेगा। तो ये सीधा सा लिंक है, जो इनपुट कॉस्ट कम करना और जो रिटेल जो प्राइस है, जो पनीर हो गया जी, और रोटी पराठे जो ब्रांडेड मिलते हैं उसको 5% में ले आना, उसका भी डिमांड बढ़ेगा। तो ये तरह की लिंक है कि प्रोडक्शन से लेके जो कंज्यूमर पॉइंट तक, तो उसको GST रैशनलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है। आगे चलकर हम देखेंगे ये जी। और क्या आप मानते हैं, क्योंकि अभी जैसा हम संबित पात्रा को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 70 से 75 वर्ष तक अगर देखा जाए तो किसानों को इतनी सहूलियत नहीं मिली, लेकिन अब जिस तरीके से जब हम आधुनिक कृषि की बात कर रहे हैं, मशीनों की बात कर रहे हैं, जो राहत यहाँ किसानों को मिली है, तो क्या ये माना जाए कि मशीनरी को और बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे और बेहतर कृषि की तरफ हम बढ़ पाएँ? बेहतर किसी की तरह बढ़ा, क्योंकि मैकेनाइजेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक फंडामेंटल पॉइंट होता है। अगर जितना मैकेनाइजेशन होगा आपका कृषि पद्धति इंप्रूव होता है, प्रैक्टिस कम होता है, लॉसेस कम होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट प्री हार्वेस्ट लॉसेस जो बोलते हैं जी, उसके जो काटा जाता है फसल को उसका लॉसेस कम हो गए, तो ये एक मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। मैकेनाइजेशन जब बढ़ेगा तो उसका जो फल जो लॉसेस कम होता है तो इसका मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ जी, जितना लॉस हो गया प्रोडक्शन कम हुआ। जो और टायर में जैसे इवन द टायर ट्रैक्टर, उसका टायर का खर्चा भी कम होगा, ट्रैक्टर खर्चा भी कम होगा, तो वो कम होने से इनपुट कॉस्ट में बहुत सीधा इसका असर पड़ेगा जी। और जैसे मैं बताया कि जो कंज्यूमर साइड है, तो कंज्यूमर साइड में डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि रेट रैशनलाइजेशन होने के बाद उसका दाम भी बहुत सारी चीज़ों के कम हो जाएंगे। तमाम मिल्क प्रोडक्ट्स, व्हीट प्रोडक्ट, बहुत सारे पिज़्ज़ा, ब्रेड, बहुत सारे तरह
तो उसके ऊपर असर, डायरेक्ट असर पड़ेगा, कम रेट, दाम कम होंगे। जी बिल्कुल, और खासतौर से इस जीएसटी रिफॉर्म का एक और जो पहलू सबसे अहम जो माना जा रहा है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें हम देखेंगे उसको शून्य कर दिया गया है टैक्स को। तो क्या ये हमारे जो आम आदमी है या किसान है वो भी इसकी तरफ अग्रसर हो, ज़रूरी इसको लें, इस तरफ भी हम देख सकते हैं इस तरीके से? डेफिनेटली, क्योंकि जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट आम आदमी के लिए एक इंश्योरेंस कवर है, एक लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस जो बात कर गए, जो जीएसटी कम किया गया इसमें, तो जैसे कम होगा तो ये आसान हो जाएगा ये सब प्रीमियम इंश्योरेंस खरीदने के लिए। जी, किसान हो या नाम ना करते उसका खरीदना आसान हो जाएगा। तो जीएसटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो इंश्योरेंस कवर बढ़ाने के लिए, बहुत मेडिकल इंश्योरेंस एज वेल लाइफ इंश्योरेंस, दोनों का खर्च बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि और भी लोग आएंगे इसके दायरे में, इंश्योरेंस के दायरे में आएंगे। जितना इंश्योरेंस आएंगे उतना उनका कवरेज बढ़ेगा, उतना एक सोशल सिक्योरिटी नेट जो बोलते हैं, नेट ऑफ सोसाइटी, वो एक्सपांड होगा। तो ओवरऑल ये सब बहुत एक फार रीचिंग इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि जो रिफॉर्म और जीएसटी को रेट रिडक्शन जो अनाउंस किया गया है, जो 22 सितंबर से शुरू हो गया, तो नवरात्रि के पहले दिन, तो उस दिन के बाद से शुरू होगा इसका इम्पैक्ट दिखना। चलिए बिल्कुल, यानी एक बड़ा बदलाव जो है इसके ज़रिए वो देखा जाएगा, नज़र आएगा, और उसमें भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसके फोकस में जो केंद्र है उसमें कहीं ना कहीं कृषि और जो किसान है वो नज़र आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से देश में कृषि की बात की जाए, किसानों की बात की जाए या हर वर्ग की बात की जाए, कैसे लगातार सरकार की कोशिश यही है कि हर किसी को सहूलियत हो सके, और उसके लिए जीएसटी रिफॉर्म जो है काफ़ी अहम साबित हो रहा है और इस वजह से ऐतिहासिक भी माना जा रहा है। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के IMT सोहना में एटीएल एम्पेरिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड उन्नत लिथियम आयन सेल विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। एटीएल जापान के टीडीके समूह का हिस्सा है। EMC 2.0 यानी कि संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर के तहत 179 एकड़ में फैले लगभग 7,000 करोड़ रुपए के निवेश से इस विशाल संयंत्र में हर साल 20 करोड़ सेल बनाने की क्षमता होगी और लगभग 5,000 से 6,000 युवाओं के लिए रोजगार का भी सृजन होगा। IMT सोहना का लक्ष्य एक इलेक्ट्रॉनिक और IT हब के रूप में विकसित होना है, जो अन्य औद्योगिक क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल मोटिव हब के सफल अनुभवों से प्रेरित है। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टीडीके कॉरपोरेशन की नई फैक्ट्री से बहुत बड़ी ताकत मिली है। देश की लगभग 40% ज़रूरतें इसी फैक्ट्री से पूरी होंगी। एडवांस टेक्नोलॉजी का प्लांट है, अभी अंदर जाके देखा था प्लांट को। एक हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी, 6 सिग्मा क्वालिटी अचीव करेंगे और जो करीब 5,000 यहाँ पर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, सीधा रोजगार 5,000 लोगों को मिला है। उन नौजवानों से भी पूछा, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मेथोडिकल तरीके से उनकी ट्रेनिंग हुई है, तो उसका भी एक लाभ मिलेगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ा है और लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि अब हर चीज़ भारत में बनानी है, डिज़ाइन करनी है। साथ ही उन्होंने कहा जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, रोजगार बढ़ते जाता है। हर एक कंपोनेंट भारत में बने, हर एक जो सिस्टम है वो भारत में बने, चिप्स भारत में बने, सेमीकंडक्टर भारत में बने, बैटरी, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, पीसीबी असेंबली, जो कैमरा मॉड्यूल, ये सब की सब चीज़ भारत में बने, मेमोरी मॉड्यूल, ये सब भारत में बने। ऐसा इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज इस कड़ी में टीडीके कॉरपोरेशन की इस फैक्ट्री से बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आई है। करीब देश का 40% रिक्वायरमेंट इस फैक्ट्री से पूरा होगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिहार बंद को लेकर भी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के बिहार में हुए अपमान पर आज दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद रहा। विपक्षी गठबंधन के मंच से अपशब्द कहे जाने के विरोध में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने आज सुबह 7 से 12 बजे तक यानी आधे दिन का बिहार बंद बुलाया था। पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पूरे बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ गुस्से में हैं। शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रदर्शन चला और बंद के दौरान भी इमरजेंसी सेवाएं चलती रहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। अभी सोमवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उनकी मां को
अपशब्द कहे जाने से उन्हें गहरा दुख हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि इसके लिए वो आरजेडी और कांग्रेस को भले ही माफ कर दें, लेकिन बिहार के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तो एनडीए के बिहार बंद को पूर्ण समर्थन नजर आया है। सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया गया था और पूरी तरीके से जो बंद है वो सफल माना जा रहा है। फिलहाल किस तरीके से स्थिति रही है इस पर जानकारी लेंगे और हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, जानना चाहूँगा आपसे, 12 बजे तक जो बिहार बंद है बुलाया गया था, क्या स्थिति नजर आई, कितना सफल ये नजर आया? कुमार आलोक, आवाज मिल पा रही है आपको? हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, कोशिश करेंगे उनसे जानकारी जो है वो हम ले सकें। कुमार आलोक, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से बिहार बंद का आह्वान किया गया था, फिलहाल क्या स्थिति नजर आई, कितना सफल इसको माना जा रहा है? तो आपको बता दें, बिहार बंद के दौरान ऑडियो आ ही नहीं रहा है। आपातकालीन सेवाओं पर फिलहाल जो असर है वो नहीं पड़ा, उनको मुक्त रखा गया था और कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ जो बिहार के लोग हैं उनमें गुस्सा है और वो ही नज़र आया, देखने को यहाँ मिला। फिर चाहे महिलाओं की बात की जाए, ख़ास तौर से ये तमाम जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस बिहार बंद का समर्थन किया और साथ ही साथ शांतिपूर्ण ढंग से जो बिहार बंद है ये रहा दोपहर 12 बजे तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को जिस तरीके से अपशब्द कहे गए थे उसके विरोध में विपक्ष जो है माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, लेकिन जो जनता है वो कतई उनको माफ़ करने को यहाँ तैयार नहीं है। मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार और उसी के चलते जो बिहार बंद है वो रखा गया था करीब 12 बजे तक। और आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ अगर देखा जाए तो लोगों में यहाँ गुस्सा नज़र आया और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी जो बंद है एक तरीके से सफल माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो बाजार हैं वो बंद रहे, लेकिन इस दौरान जो इमरजेंसी सेवाएं थीं, आपातकालीन सेवाएं, वो बहाल रखी गई थी। एक बार फिर रुक करेंगे कुमार आलोक का। कुमार आलोक, किस तरीके से आप देखते हैं बिहार बंद की अगर बात की जाए, 12 बजे तक आज रहा था? आज हम बिहार बंद की बात अगर हम करें तो एक डिसिप्लिन वे में आज सवेरे 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक आप कह सकते हैं कि ये स्वतः स्फूर्त बंद था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के तमाम जो दल हैं, खासकर अगर हम कहें जनता दल यू की बात करें, लोजपा रामविलास पासवान की बात करें, या हम पार्टी की बात करें, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें, तो ये सारे दल एक साथ, उनके जो कार्यकर्ता थे, उनकी खासकर महिला कार्यकर्ताओं में देखा गया रोष, देखा गया। सभी एनडीए के घटक दलों की जितने भी महिला जो उनका विंग था, भाजपा की जो महिला मोर्चा की जो पूरी टीम थी यहाँ मैदान में थी और वो लोग बंद का आग्रह कर रहे थे। अगर कोई वाहन भी अगर उनको स्टॉप करना होता था या उनको रोकना होता था तो वो रिक्वेस्ट करके उसको कहते थे कि आज विरोध स्वरूप आज हमारा बंद है। और मात्र वो 5 घंटे तक, यानी 7 से लेकर 12 बजे दोपहर तक ये बंद रहा। और ये बंद इसलिए किया गया कि जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग पीएम की माताजी के प्रति, खासकर राहुल गांधी और कांग्रेस के मंच, राहुल गांधी और आरजेडी के मंच से जो किया गया था, उसको लेकर के तमाम तरह का विरोधाभास अभी भी देखने को मिल रहा है। खासकर आरजेडी और कांग्रेस से और जो महागठबंधन की जो नेता है, अभी तक कोई अपोलोगाइज उधर से नहीं है या अभी तक कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जिससे कि ये कहा जा सके कि वास्तव में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी शब्द बोले गए हैं वो गलत है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरीके का अपशब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया और उसी वजह से लगातार हमने देखा। लेकिन इस दौरान कुमार आलोक अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपातकालीन सेवाएं जो हैं वो बहाल रही थी और इससे पहले हम देखते थे कभी बंद की कहीं तस्वीर आती थी तो शांतिपूर्ण स्थिति नजर नहीं आती थी, लेकिन यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से हम कह सकते हैं जो बंद है वो रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। जो आपातकालीन जो सेवाएं थी, खासकर एम्बुलेंस सेवा की अगर हम बात करें तो निर्बाध रूप से उसका परिचालन हो रहा था। मेडिसिन की जो दुकानें हैं वो भी खुले हुए थे। और इसके अलावा जो हेल्थ संबंधित जो कुछ भी
ज़रूरत की चीज़ें इंसान के लिए होती है, उसको लेकर के संजीदगी थी। जो बंद समर्थक जो कार्यकर्ता थे और ख़ासकर स्कूल में जो बच्चे जा रहे थे उनको भी जाने दिया जा रहा था। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका एग्ज़ाम था और उन्हें एग्ज़ाम देने जाना था, तो उनको भी जाने दिया जा रहा था। एक सांकेतिक रूप से कहे कि कोई फोर्स नहीं था, बल्कि जो यहाँ की जनता है या पूरे बिहार की मैं अगर बात करूँ तो पूरे बिहार से ये खबरें आ रही है कि ये स्वतः स्फूर्त बंद था, कोई दबाव कोई प्रेशर नहीं था और लोगों ने स्वेच्छा से विरोध स्वरूप जिस तरीके का स्टेटमेंट जारी किया गया था, जिस तरीके की अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया था, उसको लेकर के पूरे बिहार वासियों ने एक तरह से खुद विरोध करने का फैसला लिया और बंद में वो शरीक हुए। जी, जाहिर तौर पर तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का अब शब्द बोले गए थे उसको लेकर जनता में गुस्सा है, रोष है और वो आज नज़र भी आया। 12 बजे तक जो बिहार बंद का ऐलान किया गया था वो काफ़ी सरल रहा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार की अगर बात की जाए जिस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट की रैंकिंग को लेकर। दरअसल शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में इस वर्ष भी देश के प्रतिष्ठित संस्थानों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस रैंकिंग के जरिए भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेज और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों में मूल्यांकित किया गया है। ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास ने लगातार अपना दबदबा कायम रखते हुए पहला स्थान हासिल किया। इस श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दूसरे और आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पर रहा, जबकि देश के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में आईआईएससी बेंगलुरु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वहीं इंजीनियरिंग शिक्षा की बात करें तो आईआईटी मद्रास ने एक बार फिर पहला स्थान हासिल किया। वहीं प्रबंधन संस्थानों की रैंकिंग में इस बार भी आईआईएम अहमदाबाद ने बाजी मारी। इसके अलावा कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली ने पहला स्थान प्राप्त किया। इस बीच मेडिकल क्षेत्र में शिक्षा के लिए एम्स दिल्ली ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया। रिसर्च कैटेगरी में आईआईएससी बेंगलुरु ने पहला स्थान प्राप्त किया। साथ ही नवाचार के क्षेत्र में आईआईटी मद्रास ने एक बार फिर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई और पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में जादवपुर यूनिवर्सिटी टॉप पर रही। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत में रैंकिंग फ्रेमवर्क का महत्वपूर्ण योगदान होगा। जिन्होंने एनआईआरएफ की रैंकिंग में पार्टिसिपेट किए, मैं उन सबको शुभेच्छा देता हूं और जिनको आज उस रैंकिंग प्रोसेस में रिकॉग्निशन मिली उनको भी हम आज बधाई देते हैं उनकी इस सफल प्रयास के लिए। हम सभी के प्रयासों के कारण हमारी जो लक्ष्य है आने वाले 22 साल में विकसित भारत की लक्ष्य की ओर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी देश की रैंकिंग फ्रेमवर्क उसमें एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर के रूप में काम करेगा। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि हमें उच्च शिक्षा में जीईआर यानी सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर 2030 तक 50% करना है। अगले 5 साल में हमें उच्च शिक्षा में दोगुना नामांकन करना होगा। उन्होंने साथ ही खुशी जताते हुए कहा कि भारत के 54 उच्च शिक्षण संस्थान क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में स्थान बना चुके हैं। हायर एजुकेशन में 2014-15 में लगभग 3.5 करोड़ से कम स्टूडेंट थे, जो बढ़ के आज लगभग 4.5 करोड़ हो गए हैं और इसकी लक्ष्य आने वाले 2030 तक हमारी जीईआर 50% हो। अगर हम 50% को एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट करते हैं, जो आज 4.45 या 46 करोड़ हो रहा है, ये लगभग 9 करोड़ होगा। भारत की आईआईटी आज दुनिया में ब्रांड बनी है। इसके लिए जब हम अभी देखते हैं कि हमारी क्यूएस रैंकिंग में 2014 में हम 500 की कैटेगरी में हमने अभी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी को अनुमति दिया, हमने 500 कैटेगरी क्यूएस 500 कैटेगरी को बेंचमार्क बनाई है। तो फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।